Hello students. So yesterday we have started the new chapter in geography and I hope you are liking it. We discussed many things yesterday related to India. I hope you remember this map that was there in last video. 37 degrees 6 minutes towards the north and 8 degree 4 minutes towards the south. South में 8 degree 4 minutes. Now try to understand this children. 8 degree 4 minutes क्यों है? Because if you see the map of India, when you go see it on the equator, you will find that it is very close to equator. That's why. And today what we are going to do is we will go further. Just see India's location. Yesterday we were talking about Suez Canal. Children, I want to show you where is Suez Canal. Just see, ये रहा Suez Canal. पहले क्या होता था, इंडिया से अगर यूरोप जाना, यू नो दिस साइड इज़ यूरोप ना, दिस साइड इज़ यूरोप, तो दे हैड वी हैव टू क्रॉस ऑल द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड दे देन गो. अभी क्या है, सपोज फ्रॉम मुंबई एनी शिप हैज़ स्टार्टेड एंड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन चैनल केप ऑफ गुड होप गेट इनसाइड एंड जैसे ही आप स्वीज कैनाल पास करते हो यू एंटर द मेडिटेरेनियन सी and Mediterranean Sea is the sea from where you can you enter the European countries. Okay, of course it is very clearly mentioned here that India has been in contact with all parts of the world from ages, and its relationship through land and is much older than the maritime contacts. Now try to understand this children, that जितना हम लैंड के थ्रू से जुड़े हुए हैं, लैंड मीन्स ज़मीन के थ्रू, घोड़े से जाते थे, हाथी से जाते थे, ऊंट का इस्तेमाल करते थे, यू नो इन द एंशियंट टाइम्स. अरे गाड़ी तो अब है ना, previously there were no vehicles, so these animals were only used to go from one place to the other place. Yes children, I am talking about long distance. And imagine people were so close to the animals, खुद भी खाना खाते थे, रास्ते में रुकते तो जानवरों को भी खाना खिलाते थे. अभी तो गाड़ी को खाना खिलाना पड़ता है, दैट इज पेट्रोल. आई वॉज जस्ट आई मीन जोकिंग. Then we have also got maritime contacts. Maritime contacts means contacts through water. Got it? So there are mountains in the north, you know it very well. Himalayas are there. Ancient travels, they came from these, through these mountains only. Through these mountains, the travelers who had come to India in the previous times, they used to cross the mountains and then enter India. North के तरफ की बात कर रही हूँ. And south में क्या है हमारे पास, you see, yes, you can very well understand ocean. So ओशन के थ्रू द पीपल हु वर ट्राइंग टू एंटर, उनको बहुत दिन तक सेव किया गया. देयर वॉज लॉट ऑफ पीपल हु हैव आस्क्ड, हु हैव बीन I mean the kings who were there in south, they did not allow the people to enter from the seaside easily. So अभी किस रूट से लोग आते थे, मतलब किधर से आते थे? टुडे वी हैव गॉट लॉट ऑफ मैप्स. Olden times में we did not had map. अभी we have satellite and all, कहाँ पे located है, we can find out anything with the help of the satellites. I mean our connectivity is so good today, but ancient times में ऐसा नहीं था. तो किस रास्ते से होके ये लोग आते थे? Just see, it is mentioned here. There was exchange of idea, commodities. Ancient times से हमारे पास ये था. The idea of Upanishad was there, idea of Ramayana was there, Panchatantra was there. ठीक है, ये स्टोरीज पढ़ी है चिल्ड्रन. इफ यू हैव नॉट रेड द पंचतंत्र, प्लीज रीड द पंचतंत्र. आई कांट आस्क यू टू रीड द उपनिषद एंड रामायण, ऑफ कोर्स योर किड्स,
but definitely go through the Panchatantra. A lot of informations about the ancient India we get in Panchatantra. Then we have the Indian numerals and decimal systems. So we can reach many parts of the world. You know who has given decimal? Zero किसने दिया? Yes, Aryabhatta, the greatest of the mathematicians who ever existed in India. पूरी दुनिया को डेसिमल, बिकॉज इस डेसिमल को लेके ही पीपल हैव ट्रैवल्ड ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड चांद तक भी गए हैं हम डेसिमल को लेके, एंड मंगल ग्रह तक भी डेसिमल. यू नो हाउ डेसिमल वर्क्स? 0.1115, 0.0003, ये क्या है? दिस इज ऑल इज व्हाट इज डेसिमल, which helps in calculations, and which helps the scientists, astrologers, astronomers to calculate the distance in point 0005, 0.0003 also, and 0.15 also. Got it? So पहले भी हम वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, लेकिन पूरे वर्ल्ड से किस लिए कनेक्टेड थे? व्हाट एक्चुअली वी वर डूइंग? ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी वर एक्सपोर्टिंग स्पाइसेस, मसालों की. हमारे पास मसाले बहुत होते थे ना. यू नो इंडियन स्पाइसेस आर स्टिल वेरी मच रिक्वायर्ड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बहुत मतलब बेस्ट क्वालिटी स्पाइसेस, मसाले जो हैं, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सारी जो आप किचन में जाके देखना, मम्मी से पूछना, दीज, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये ऑल दीज स्पाइसेस वेर वेरी मच इन डिमांड इन द फॉरेन कंट्रीज. एंड इंडियन मर्चेंट्स हु प्रोवाइडेड दिस अर्न लॉट ऑफ मनी. बाहर के कंट्रीज में इसका रिक्वायरमेंट होता था, और हमारे इंडियन merchants, they used to export it. Greek sculpture, influence of Greek sculpture also we find many places. एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, जैसे हम दूसरे देशों को हमने कुछ सिखाया, तो दूसरे देशों से हमने भी कुछ सीखा. क्या था? स्पेशली मीनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया की जो बड़ी बड़ी मीनारें हैं जो आज हम मस्जिदों में बनाते हैं, दिस वी हैव लर्न फ्रॉम वेस्ट एशिया. आपको पता ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन इंडिया इज होल्डिंग इन साउथ एशिया. 29 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज है. अभी चिल्ड्रन, अभी इट हैज़ चेंज. ये पुराना डाटा है. अभी आपको पता है द डाटा हैज़ चेंज. यस, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को हमने इंक्लूड कर लिया है. तो अभी ये डाटा चेंज हो गया है. नाउ फाइंड आउट द रीसेंट डाटा फ्रॉम द इंटरनेट. दिस इज द होमवर्क दैट आई एम गिविंग यू. Now children, this is one of the activities that you will be doing. I'll be posting it in the snap homework. Number of union territories along western and eastern coast. Area wise, which is the smallest largest state. Children, आपको ये एक्टिविटी ज़रूर करनी है, because this is not only geography, this is somewhere related to GK also. So you should know about all these things. Okay. The states which do not have an international border or lie on the coast. बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनका कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, एकदम मतलब समुद्र पे उनका. द एरिया इज लाइंग इन सी. अच्छा, विच स्टेट्स, अभी कौन कौन से स्टेट्स हैं विच शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश. So please find out these informations and do it in your notebook. Now India has its land boundaries with Pakistan and Afghanistan. नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्दर्न साइड में हमारी जो बाउंड्रीज हम एक्सचेंज करते हैं, वी शेयर आवर बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ. नॉर्थ वेस्ट में मतलब कि टूवर्ड्स द
उत्तर पश्चिम दिशा दिशा में हमारे पास पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। एंड नॉर्थ में, मतलब टुवर्ड्स उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ बिल्कुल, चाइना, नेपाल एंड भूटान। म्यांमार और बांग्लादेश है ईस्ट में। एंड साउथ में हमारे पास कौन कौन है? टू आइलैंड कंट्रीज। कौन कौन सी हैं ये आइलैंड कंट्रीज? श्रीलंका एंड मालदीव्स। दिस इज अ वेरी, आपसे पूछा जाएगा विच आर द आइलैंड कंट्रीज टुवर्ड्स द साउथ, तो आपको बताना पड़ेगा श्रीलंका एंड मालदीव्स। पॉक स्ट्रेट है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, एंड गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं। ये दिख रहा है बेटा? यस। अभी ये सारी चीज़ें आपको लोकेट करनी है। यू हैव टू लोकेट ऑल दीज प्लेसेस ऑन द मैप। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मैप वर्क पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये मैप वर्क करना ही करना है बेटे। देर इज़ नो वे टू सेव योर सेल्स। प्लीज़ डू इट। यू हैव टू मार्क लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये देखो लक्षद्वीप यहाँ पे हैं, एंड देन यू हैव हियर एंड श्रीलंका। ठीक है? सो वी आर शेयरिंग, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर हियर। अभी yesterday we were talking about, तो अगर ये जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, तो जैसे अगर हम सदर्न पूरा कहें तो ये यहाँ पे दिस इज़ द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, लेकिन इंदिरा पॉइंट वाज हियर, जो अभी समुद्र के अंदर सबमर्ज हो गया है। इट हैज़ गॉट मर्ज्ड इन इनसाइड द सी, बट इंदिरा पॉइंट वाज समवेयर हियर। गॉट इट? ट्राई टू अंडरस्टैंड द लोकेशन। अभी we have strong geographical and historical links, just see it is mentioned here children, with our neighbor. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. एशिया से बिल्कुल अलग इंडिया का स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इंडिया का स्ट्रैटेजिक प्लान है, एंड हाउ इंडिया इज स्टैंडिंग देयर, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. Children, we have completed the first chapter, and very small chapter. This is a very small chapter that we have done. आपको इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, that this chapter has got a lot of informations that you need to remember. Got it? Like again, I'm repeating, this map is very important. You have to do this map work. हाँ, ये आपको इसमें so students, as you can see, we have completed the chapter here, and lot of important points are there, like some graph is here. Graph nahi hai, I mean the position of India. How what is the position of India in this chapter? Lot of activities are not there, but the maps that are there make it very important. Another thing that makes it important is the certain numbers that are there. Okay, ye all these numbers that are there, south mein what is the latitude, then longitude, then you have to every time whatever they have mentioned here, whatever explanation is there, it is mentioned that you have to see to which figure
एंड गो टू विच साइड, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड देखना है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड देखना है। तो ये जो सारी डेटास दिया हुआ है, ऑल दीज डेटास दैट आर गिवन, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज डेटास। ठीक है, लाइक लोकेशन वाइज। हाँ, तो इन योर नोटबुक्स यू हैव टू मेक वर्ल्ड मैप में भी आपको मार्क करना है वर्ल्ड मैप। यस चिल्ड्रन, व्हाट नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाट यू हैव टू मार्क ऑन द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप आपको लेना है, एंड वर्ल्ड मैप में यू हैव टू मार्क द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप in comparison to the other continents like America, North America, South America, North America, Africa, Europe, and India, and Indian Ocean and Pacific Ocean. So these things that you have to mark, then only strategically you will be understanding what is the location of India. This was the first map. Second map में क्या है? Although I've told you, but still I'm telling you again. Got it? Just look at this map. The east west, I mean this is east, this is west. The location, the location of India, and then north south, ये वाला। Then this kilometers also you have to remember, ये kilometers भी आपको याद करना है। Okay, ये वाला मैप देख लो। ये वाला मैप करना नहीं है आपको, बट व्हाट हियर इट इज सेइंग ना, ये चीज बना देती है वेयर नो what you should know, contacts with the world. India has been continuously in contact with the world. तो दुनिया के साथ जो इंडिया का कांटेक्ट है, हाउ इट हैज़ बीन मेंटेन एंड व्हाट इज़ द वेज ऑफ मेंटेनिंग दिस कांटेक्ट, ये इसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है, एंड वी नीड टू डू दैट। गॉट इट? अच्छा, इंडिया का लोकेशन खाली we are not only studying it now, we are not reading it now, it has been very clearly mentioned in the उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, मतलब पुरानी कहानियों में भी, इन द ओल्डन स्टोरीज ऑल्सो वी विल फाइंड द locations of India very clearly mentioned. That's why you need to go through the old texts as well. Okay? Then one very important map for children just now that we were discussing, ये देख लो आप। This is also a very frequently asked question for your map. Mark the major नेबर्स ऑफ इंडिया। नेबर्स में आप देखो यहाँ पे, अभी हमने बताया था नॉर्थ वेस्ट, आई एम जस्ट मार्किंग इट, एंड डब्ल्यू। नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। गॉट इट? नॉर्थ में कौन है? दिस वाज नॉर्थ वेस्ट ना, वेस्टर्न साइड हो गया ना ये। नॉर्थ में आप देख लो क्या क्या था, ये दिस इज नॉर्थ। तो यहाँ पे वी हैव चाइना, नेपाल, एंड वी हैव भूटान। ठीक है, ये भी लोकेशन हमने मार्क किया था, ये भी लोकेशन अभी इसमें दिया हुआ था। अनदर नेबर्स कौन है? नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। चलो देखते हैं कहाँ है म्यांमार एंड बांग्लादेश। ईस्ट में, यस, दिख रहा है आपको, एंड ये म्यांमार दिख रहा है। Okay, now children, one very important thing that I'll be asking you in the class, when I come to the class, I'll be asking you that in the India's location, please tell me, India's location nahi, Indian states mein you have to tell me about the 7 sisters that are there. Remember the 7 sisters? चलो आज देखते हैं which are these 7 sisters. I am sure many of you don't know about it.
ठीक है। अब बिकॉज यू आर वेरी श्योर, आप रहते कहाँ पे हो, ये रहा आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश, ये है आपका, मैं आपको बताती हूँ बेटा, वाराणसी। वेयर इज़ वाराणसी? दिस इज़ वाराणसी, इस जगह पे वाराणसी है। आप बिहार जानते हो, आप झारखंड जानते हो, आप बंगाल भी जानते हो क्योंकि मोस्ट ऑफ यू नो कोलकाता। लेकिन व्हेन फ्रॉम हियर व्हेन यू गो टू असम, असम में फेमस, असम के, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेवन सिस्टर्स। चिल्ड्रन, यू नीड टू नो द लोकेशन ऑफ दी सेवन सिस्टर्स। असम के ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, ओके। असम के नीचे में मेघालय है। गॉट इट? सेवन सिस्टर्स, देखो सेवन स्टेट्स हम अभी काउंट करेंगे, पूरे सेवन हैं। 1 2 3, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। गॉट इट? फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इस तरह से समझना। यू शुड रिमेंबर चिल्ड्रन, एवरी टाइम क्या होता है, स्पेशली इन जीके, कल की डेट में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठोगे ना, वहाँ पे दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। नेम द सेवन सिस्टर्स, विच इज़ द नेबरिंग स्टेट ऑफ त्रिपुरा। तो आपको त्रिपुरा का नेबरिंग स्टेट में आपको बताना पड़ेगा। त्रिपुरा का नेबरिंग स्टेट, अभी बांग्लादेश मत लिखने देना। त्रिपुरा का नेबरिंग कंट्री इज़ बांग्लादेश, बट त्रिपुरा का नेबरिंग स्टेट इज़ मिजोरम। त्रिपुरा के बीच में, कैन यू सी दिस? So we are again, I'm again just telling you what, which are these seven states: Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura। 7 हो गए, 7। ठीक है, ये देखो अच्छा सा एक फेस भी बन जाता है इसमें। आई मीन हमने जब याद किया था ना, व्हेन वी यूज टू रिमेंबर दीज लोकेशंस, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा ना इसी तरह से याद करते थे, उसको कुछ फ़नी बना के याद करने की कोशिश करते थे। आवर ज्योग्राफी टीचर हैड taught us all these things. Now please see this, you know, स्कूल भुवन क्या है? व्हाट इज द स्कूल भुवन? School Bhuvan is a portal providing map-based learning to bring awareness among the students about the country's natural resources. पता होना चाहिए कि हमारे पास what all natural resources we have. एंड स्कूल भुवन नाम का एक पोर्टल है, वहाँ से हमको ये सारी स्ट्रैटेजी ये पता चलता है। एनवायरनमेंट इज देयर, देयर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यू नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना बच्चों, हमने किया हुआ है, वी हैव डन डेवलपमेंट। आज की डेट में हम वॉट एवर वी आर यूजिंग टूडेज टाइम, वॉट एवर वी आर यूजिंग, वी हैव टू सी दैट आवर फ्यूचर इज ऑल्सो मेंटेन थ्रू दैट। हमारा फ्यूचर में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग विच वी कॉल इट एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड it is an initiative of Bhuvan. Now what is Bhuvan? NRSC ISRO based on NCERT syllabus. तो बहुत सारे मैप्स इस पे आपको मिल जाएंगे, वेरियस मैप्स ऑफ इंडिया रिलेटेड टू सेकेंडरी स्टेज। ओके, ये एक बारी देख लेना चिल्ड्रन। The first question, it is MCQ. So choose the right answer from the 4 alternatives given below. Tropic of Cancer does not pass through. अभी आप इसको मैप देखोगे तो आपको क्लियर होगा, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू द आंसर, उड़ीसा। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, मैं नहीं बता रही हूँ, ये चिल्ड्रन आपको करना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव फ्रंटियर्स विथ नेपाल। मैप देख के समझना है इसको। Just because I am saying that's why you will be doing it, it is not like that. Please try to understand. Now if you intend to visit Kavarati, Kavarati आप जाना चाहते हो समर वेकेशन में, चिल्ड्रन, तो कौन सी यूनियन टेरिटरी में आप जाओगे? कावाराती कहाँ पे है? लोकेशन ऑफ कावाराती। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया, 2 आपको खोजना है, 4 आपको खोजना है।
नहीं मिलेगा तो वी विल बी हैविंग ऑनलाइन क्लासेस, आप वहाँ पे मेरे साथ डिस्कस कर लेना, प्लीज़ डिस्कस इट विथ मी देयर। नाउ my friend hails from a country which does not share land boundary with India. Identify the country. अभी इन कंट्रीज़ में से आपको बताना है कौन सी कंट्री है जिसका बाउंड्री लाइन हमारे साथ शेयर नहीं होता है। ठीक है, अभी एक बारी मैप देखें क्या? चलो लेट्स सी द मैप। नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी कंट्रीज़ है? भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है। अभी देख लो, ये है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब जो हैं हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। सो आंसर क्या होगा? यस, वेरी गुड, एज यू ऑल नो तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन से करना है, ये मैंने आपको नहीं बताया है। ओके चिल्ड्रन, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। प्लीज फाइंड इट आउट चिल्ड्रन। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। इंडिया से बड़े कंट्रीज का नाम बताना है आपको। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट के तरफ कौन से आइलैंड्स हैं ये आपको बताना है। मैप देखोगे चिल्ड्रन, दीज ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू द मैप, यू हैव टू सी द मैप। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। साउथ में हमारे कौन कौन से आइलैंड कंट्रीज हैं चिल्ड्रन, यू हैव टू टॉक अबाउट दैट मैप, because this chapter you cannot complete until and unless you go through the detailed map work. Got it? Sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does it happen? Children, ये मैंने जिस समय मैं क्वेश्चन कर रही थी मिर्ज़ापुर वाला याद है? when we were doing the chapter at that time, one place we have discussed about Mirzapur. Mirzapur is the place from where the standard meridian is passing. Standard meridian is means कि जो टाइम उस स्टैंडर्ड मेरिडियन के वाली जगह पे होगा, मिर्ज़ापुर वाली जगह पे, ऑल ओवर इंडिया इट वुड बी फॉलोड, हर जगह। गॉट इट? क्योंकि इट इज़ वन कंट्री। एक कंट्री में वी कैन नॉट सी अनदर टाइम इन गुजरात एंड अनदर टाइम इन असम। गॉट इट? तो अरुणाचल we cannot do that. So you have to see sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh. 2 घंटे का फर्क पड़ता है। I told you while I was explaining, Arunachal Pradesh में sunrise happens at 5 o'clock. So Gujarat में sunrise will happen at 7 o'clock. 2 hours का difference is there. Children, that makes it, we are using this 2 hours difference to understand that eastern part and western part, easternmost and westernmost. Now let me make one thing very clear, the same things you have to study in class 10th also. Yes children, the location of India and all आपको एक बारी क्लास 10th में भी करना है। तो ये कैसे करेंगे? अभी से अगर इसको करेंगे तो अच्छा रहेगा। Now question number 4, central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance. Why? ये आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। यू ऑल हैव टू डू दिस आंसर। जस्ट सी, here India has a central location. Got it? अभी आप इसमें देख लो, हमारे पास वी आर गेटिंग प्लेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. India has southward extension, I'm sorry, India is southward extension of Asian continent. Indian Ocean routes are there. We are connected to Europe. We have the Deccan Peninsula.
इंडियन ओशन में, एंड वी हैव क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया। ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड दैट द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे ये ज़रूर मेंशन करना, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडियन ओशन के पास, इंडिया के पास जितना लैंड है ऑन द सी, वो किसी और कंट्री के पास नहीं है। दैट मेक्स इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट. So we have completed the chapter, children. Next class, in the next video, we will be discussing what is the next chapter that we will be starting. I will let you know when we start the next video. Thank you, children.